Morning, students. In the last class, we have discussed about the reactivity of metal with water as well as acid and base. When metal oxide reacts with water, it gives metal hydroxide, and when metal reacts with acid, it gives salts of acid. Like as when aluminium oxide reacts with HCl, it forms aluminium chloride as well as water. And today we will discuss the next topic, that is how do metal reacts with solution of other metal salt. यानी कि इसमें है reactive metal can displace less reactive metal from their compound in a solution or molten state. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो मेटल है तो जो पहला मेटल है जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो क्या करेगा, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। कहाँ से? उसके कंपाउंड से, उसके सोल्यूशन से। उसका जो भी कंपाउंड होगा सोल्यूशन में उसको वो डिस्प्लेस कर देगा। अब देखिए, अब ये आप कैसे बताएंगे कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, ये है ना बात। तो देखिए, वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मैटर विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड्स इन द लास्ट लेक्चर। टुडे we will discuss the reactivity of metals with other metals in a compound or in solution state. अब देखिए यहाँ पर, देखिए सपोज ये है आपका एग्जांपल है, ये वाला मेटल जब सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, यानी जब कोई भी मेटल बी के सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेता है ए का, और प्लस साथ साथ बनता है मेटल बी। विच मेटल, कॉपर और आयरन, इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन। देखिए, अब हमें ये बताना है, इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हाउ विल आई वी आइडेंटिफाई द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स. So this is the reactivity series. In this series, the reactivity series is a list of all metal arrangement in the order of their decreasing activities, like as potassium, sodium, calcium are most reactive metal, while mercury, silver, and gold are least reactive metal. This is the reactivity table, and in this table you can see that the metal which placed at the upper side are more reactive, and the metal which placed in the lower side are less reactive. So as we move top to down, top to down, the reactivity of metal decreases, right? The reactivity order is potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold. Suppose if we have sodium carbonate, and other thing is lead chloride, then which displays the metal? Sodium displays the metal because sodium is more reactive than lead, because sodium are put in the upper side of table and the lead is middle of the table. So which one is more reactive? So sodium is more reactive. So according to this table, or on the basis of this table, we can check out the reactivity of metals. These are the question in text question. We will discuss all the question after completion of the chapter. Now, how do metal and non-metal reacts? Means metal और non-metal जो है कैसे react करते हैं? We learned that novel gases which have a completely filled valence shell, यानी कि जो हमारी नोवल गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं? वो रिएक्टिव नहीं होती, बिकॉज क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट होता है। दे कैन नॉट लूज और दे कैन नॉट गेन द इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बताइए, अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है, वी आर द रिचेस्ट पर्सन, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डोनेट करेंगे, डोनेशन ही तो करेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत पैसा है तो टैक्स बचाने के लिए भी हम लोग डोनेट करेंगे कि अब इतना तो टैक्स कट जाएगा, इससे बेटर यही है कि हम लोग किसी को दे दें। या फिर हमारे पास कम पैसा है तो हम सोचेंगे कि हमें सपोज वी आर वर्किंग
or we are doing any job anywhere, then वो क्वेश्चन arises in our mind that कि इस बार दिवाली पे बोनस अच्छा मिलना चाहिए बिकॉज प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा घर का खर्चा जो है चल नहीं पा रहा है. देन व्हाट विल वी डू? we the question arises in our mind that कहीं से हमें कुछ पैसा मिल जाए जो हमारा जो है अच्छा खर्च चले, दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट हो, है ना. और अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत पैसा है तो हम लोग सोचते हैं अरे किसी को दे दें, डोनेट कर दें. मन से भी अगर नहीं आता है तो टैक्स से बचने के लिए हम लोग कर देते हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है. लेकिन अब जिसकी ना तो ज़रूरत है, ना तो उसके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो क्या करेगा, किसी को देगा, और ना ही उसके पास इतना कम है कि वो किसी से लेगा, उसका अपना काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है. इन दिस केस व्हाट विल वी डू? ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ठीक है हमारे पास जैसा है हम लोग उसमें खुश हैं, आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपना अच्छे से खर्चा चला रहे हैं, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, अपना आराम से मस्ती में जी रहे हैं. ऐसे ही क्या केस होता है, मेटल का केस होता है. अब जब उनका आउटर कंप्लीट है, आउटर मोस्ट शेल उनकी कंप्लीट है, तो वो किसी से क्यों लेना देना रखेंगे भाई, वो तो किसी से मतलब ही नहीं रखेंगे. लाइक नोबल गैसेस, वो किसी से मतलब नहीं रखते हैं. लेकिन जो कुछ मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, उनके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, या तो वो उसको डोनेट करना चाहेंगे, या फिर अगर वो उनका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कहीं से वो लेना चाहेंगे. अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम. देखिए इसमें क्या है, सोडियम एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1. 11 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो ये 1s2, 2s2, 2p6, ये 6 है, 2p6, 3s1. यानी इसके आउटर मोस्ट में देखिए, अगर हम के एलिमेंट में देखें तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2, 8 और 1, ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए. अब यानी कि 3s में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है. अब एक इलेक्ट्रॉन 3s में है तो ये क्या करना चाहेगा, ये सोचेगा अरे यार इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दो और अपन जो है आराम से मस्ती करेंगे, स्टेबल रहेंगे, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. ठीक है. तो सोडियम एटम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करता है, अपने इस मेटल को लूज, अपने मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको लूज करके अपना स्टेबल ऑक्टेट बनाएगा. क्योंकि न्यूक्लियस में जो होते हैं 11 प्रोटॉन होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है 10 होते हैं. सो देर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अ सोडियम कैटायन. इसीलिए क्या है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. क्यों? अब देखो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ जाता है, इसको हम कैसे समझेंगे. वाई सोडियम बिकम पॉजिटिव, इसको हम ऐसे समझेंगे. मान लीजिए हमारे पास क्या है, पैसा है, और पैसा क्या होता है, धन होता है. तो जो धनी व्यक्ति होता है वही तो किसी को देता है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है धनायन. धनायन मतलब धन, धनायन, धन को धनायन से समझ लो. तो यानी कि जिसके पास ज़्यादा सामान होगा वही तो डोनेट करेगा, और जब वो डोनेट करेगा तो वो कैसा बन जाएगा, धनी बन जाएगा. तो यानी उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. लेकिन क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसके आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब जब उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा यार मेरे पास तो 7 है, मुझे कहीं से एक और मिल जाए तो मैं आराम से अपना स्टेबिलिटी में आ जाता हूँ. देखो यहाँ पर क्या है, तो ऐसे केसेस में जो हमारा क्लोरीन है वो क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, सॉरी वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो वो आ जाएगा कर्जे में, ऋणी, उसको कहते हैं ऋणी. और ऋणी होता है नेगेटिव चार्ज. अब देखो धनी है तो पॉजिटिव चार्ज, ऋणी है तो नेगेटिव चार्ज. धनी है मतलब हमने तो भैया किसी को दे दिया है क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है, और ऋणी है तो इसका मतलब क्या है, भाई हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, हमने किसी से उधार ले लिया है, तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया, कर्जा चढ़ गया, है ना, बोझ सिर पे हो गया कि भाई हमने किसी से पैसे लिए हमें देने हैं. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई कॉन्सेप्ट. ठीक है. केमिस्ट्री को आप जो है बहुत ही ज़्यादा ऐसे वे में ना समझे कि अरे केमिस्ट्री बहुत भारी है, क्या होगा कैसे होगा. केमिस्ट्री को आप जब पढ़िए तो उसको बहुत
अच्छे से पढ़ें, मतलब उसको आप बहुत लाइटली पढ़ें, ऐसे नहीं कि बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, उसको आप डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ें, तब ये आपके समझ में ज़्यादा आती है। अगर आप रट्टाफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, रट्टाफिकेशन करेंगे तो इट विल डोमिनेट ओवर यू, आपके ऊपर हावी हो जाएगी, और ऐसे केसेस में क्या होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे केमिस्ट्री को, आप यही सोचेंगे अरे बहुत भारी है, बहुत भारी है। देखिए अब क्या है, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। देखिए सबसे पहले नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। तो हमें ये तीन ही दे रखी हैं। देखिए इनका एटॉमिक नंबर क्या है, 2, 10, 18। अब देखो इनके आउटर मोस्ट जो है कंप्लीट है। के में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2, एल में 8, एम में 8। तो इनके जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो तो कंप्लीट है, तो ये क्यों किसी से लेना देना करेंगे। इसी तरह से देखिए जो मेटल है, इनमें क्या है, इसमें एक मेटल है, इसमें दो है, इसमें तीन है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये अपना एक मेटल डोनेट करना चाहेगा स्टेबल होने के लिए, मैग्नीशियम दो करना चाहेगा, एल्यूमिनियम तीन करना चाहेगा, पोटेशियम वन करना चाहेगा, कैल्शियम टू करना चाहेगा, और इसी तरह से जो है। अब बात आती है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये क्या करेगा, ये इसके आउटर मोस्ट में 5-6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये किसी से साझा कर लेगा, साझा मतलब शेयरिंग कर लेगा। पर ये क्या करेगा, देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, अब इनके पास 5 है, इनको कितने चाहिए, 3 चाहिए। तो देखिए ये क्या है, नॉन मेटल्स है ना। तो नॉन मेटल्स क्या चाहते हैं, नॉन मेटल्स ये चाहते हैं कि हम लोग जो है किसी से साझा कर लें। ये लेने देने का काम इनको पसंद नहीं आता कि यार यार क्यों लेना क्यों देना, क्यों ना हम ऐसा काम कर ले कि हमारा भी काम बन जाए और दूसरे का काम भी ना बिगड़े। तो ये ऐसा वाला काम करते हैं। तो ये कहते हैं कि चलो हम साझा कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन करके हम लोग अपना काम बना लेते हैं। क्यों, कंट्रीब्यूशन से क्या होगा, कंट्रीब्यूशन से ना तो तुम्हारा नुकसान होगा ना हमारा, है ना। अगर मान लीजिए सपोज आपका पिज़्ज़ा खाने का मन है, और आपके पास क्या है, पैसे कम है, मान लीजिए 200 का पिज़्ज़ा आ रहा है, और आपका बहुत मन कर रहा है, आपके दोस्त के पास भी 100 रुपीज़ है, आपके पास भी। तो आप लोग क्या सोचोगे, अरे चलो आधा मैं ले लेती हूँ, आधा मैं डाल लेता हूँ, और अपना दोनों मिल के एक पिज़्ज़ा ले लेंगे, दोनों आधा आधा खा लेंगे, कम से कम खाने को तो मिल जाएगा। अब उसका भी मन है और दोस्त का भी मन है, दोनों के पास पैसे आधे हैं। तो देखिए आप अगर आप दुकान पर जाएंगे तो आपको 100 रुपये का पिज़्ज़ा तो कोई देगा नहीं काट के। तो आप ये सोचेंगे क्यों ना शेयरिंग कर ली जाए, दोनों आधा आधा खा लेंगे, काम भी बन जाएगा, पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा ही हिसाब नॉन मेटल्स करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें लिखा है, देखिए अब देखिए यहाँ पर NaCl के बीच में देखिए कैसा बॉन्ड बना है। Na सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो इसलिए सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज। तो इनके बीच में क्या बनता है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसकी वजह से इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड में, मैग्नीशियम क्लोराइड में भी आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिए आप, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन को एक चाहिए, और 2 क्लोरीन है तो दो चाहिए, तो मैग्नीज क्या करेगा, एक एक दोनों को दे देगा। देखिए यहाँ दिया है, और कैसा बॉन्ड बना लेगा, आयनिक बॉन्ड, समझे। लेना देना करेंगे आपस में और खुश रहेंगे, ठीक है। So, students, I hope you understand all the class. That's all for today. We will discuss the next property in the next class. Thank you for cooperation, students.